Jai Hind students, welcome to the part 7 of class 12 chapter 5, that is principles of inheritance and variation. This is the next part, that is part 7, and it will deal with your topic polygenic inheritance and pleiotropy. If your book NCERT book is old one, then it will be given in the supplementary material behind the book, in the last pages of the book where the supplementary materials are given. In that topics, polygenic inheritance and pleiotropy is given in your book, and if your book is new one, then you will get these topics in the chapter itself. Okay, in the previous slide, that is part 7, we have read about the non-Mendelian inheritance characters that is done in population genetics, that were multiple alleles, blood group, codominance, these type. Especially multiple alleles was related to the population genetics, in which trait was guided by more than pair of alleles, and it was non-Mendelian inheritance. Now concentrate to these topics, polygenic inheritance and pleiotropy. Here we deal with non-Mendelian inheritance, and also these results are seen when we perform population genetics. Mendelian had given a straightforward laws about the genetics, which was not all time seen or received in while studying the genetic characters in a population. And in continuous slides we are reading these types of inheritance that were not following the Mendelian inheritance, laws of inheritance. इन द सेम सीरीज़, उसी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट फॉर योर CBSE बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो एंड नीट पेपर ऑल्सो. The basic concept you have to understand, then it will be very easy to know the genetic phenomena behind these inheritance or phenotypic traits. जब आप बेसिक कैरेक्टर और बेसिक इसके जेनेटिक कैरेक्टर्स को समझ जाएंगे तो ऐसे फिनोमिनन जो हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आसानी से समझ सकते हैं. एक प्रीव्यू लेते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था. Both the terms polygenic inheritance and pleiotropy are the outcome of non-Mendelian inheritance studied on population genetics. ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि अभी 2-4 टॉपिक्स ऐसे चल रहे हैं जो कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस हैं. Mendels had described that traits as an outcome of factor or genes which were present in 2 different allelic forms. एक बार मेंडल को याद करते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस लॉ को याद करते हैं. What did he say? That a trait is an outcome of factor or gene which are present in 2 different allelic form that were may be dominant and recessive, such as height of the plant may be either tall or dwarf. He had never talked about any intermediate phenotypic traits in between tall and in between dwarf. मेंडल साहब ने इस टॉल और ड्वार्फ के बीच में कोई भी थर्ड फिनोटिपिक एक्सप्रेशन की बात नहीं की थी. उसी तरह कलर ऑफ फ्लावर उन्होंने पर्पल लिया था और वाइट लिया था, और ही अकॉर्डिंग टू हिम एंड अकॉर्डिंग टू हिज लॉ फ्लावर्स जो भी होंगे या तो पर्पल होंगे या वाइट होंगे. लेकिन क्या ये हम लोगों के रियल लाइफ में ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन का जो कंसेप्ट है मेंडल का, ये सही है? नहीं है. बिकॉज वी परसीव डिफरेंट वेरिएशंस इन आवर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. या तो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बीच में भी हम बहुत सारे ट्रेट्स को ऑब्जर्व करते हैं. उसी टाइप के टॉपिक को हम आज इस स्लाइड में
पढ़ेंगे. What is the main problem behind it? What we faced that if we absorb the living organisms around us, many intermediate traits are also present. बहुत सारे intermediate traits भी present हैं. इमेजिन अगर मेंडल साहब का ये कहना अगर आसान रहता तो हमारी जेनेटिक्स बहुत ही इजी पेपर रहती, बहुत ही आसान रहता किसी भी कैरेक्टर को प्रेडिक्ट करने का जेनेटिकली, क्योंकि उन्होंने कोई डेविएशन दिया ही नहीं. उनका मानना था कि या तो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, और अगर हाइब्रिड है तो जो कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट का होगा. तो इज़ इट द जेनेटिक्स इज सो सिंपल? नो, इट इज़ द बेस. ये मेंडल साहब का जो ये डिस्कवरी थी ये बेस है, बट इट डजंट इंक्लूड द वेरिएशंस एंड ऑल द सिनारियो डेट वी फाइंड इन जेनेटिक्स. ये सारे जेनेटिक्स के फिनोमिनन को कवर नहीं करता है, जैसा कि 2 फिनोमिनन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं. नाउ हम देखते हैं कि there is a dominant trait, okay, and then there is a recessive trait according to Mendel. ये dominant trait है और recessive trait है, और इस बीच में कोई भी कुछ भी नहीं आएगा according to the Mendel sir. Then dominant trait and recessive trait के बीच में हम लोग प्रैक्टिकली बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेट्स को ऑब्जर्व करते हैं. ओके, इंटरमीडिएट ट्रेट्स मीन्स बीच के ट्रेट. जैसे हमने कोडोमिनेंस में पढ़ा था, दैट वाज आल्सो एन इंटरमीडिएट ट्रेट जो कि पिंक हो गया था. दैट वाज आल्सो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस. उसी टाइप का इसमें भी पढ़ेंगे, बट देयर इज डिफरेंस. वो एक अलील से गाइड हो रहा था, एक जीन से गाइड हो रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत सारे जीन्स से गाइड होते हैं. ओके, द ट्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स और इन डिफरेंट ग्रेडियंट्स, दे आर जनरली गाइडेड बाय मोर देन वन जीन्स. एंड एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रेट्स आर स्किन कलर, आई कलर, हाइट, hair color and many more things. Weight of the body, texture of the body, skin and many more things are guided by so these type of phenotypic expression जिसमें individual may be found of different intermediate traits. ये इतने फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में भी बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेट्स आ रहे हैं. ओके, दीज आर स्किन कलर, आई कलर, हाइट, हेयर कलर. देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेट्स एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? व्हाट इज़ द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज दैट इट इज़ कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इस टाइप के इनहेरिटेंस को जिसमें हम लोग बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेट्स को देखते हैं, वैसे ट्रेट जो है वो जेनेटिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो करते हैं. मीन्स कि ऐसे इंटरमीडिएट्स कैरेक्टर के जेनेटिक्स को अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देन द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. मीन्स what does it refers? It refers to an inheritance of a single phenotypic trait controlled by multiple independent genes. तो हमने इस डिफरेंट फिनोटिपिक ट्रेट के जेनेटिक को स्टडी किया. जब जेनेटिक्स को स्टडी किया तो हमारे पास एक नया टर्म आया, डैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इस टाइप के जेनेटिक फिनोमिना में क्या होता है, ये सिंगल फिनोटिपिक ट्रेट जो है वो मोर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स. यहाँ पे गौर करिएगा, कंसंट्रेट हियर. यहाँ पे सिंगल ट्रेट जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स से कंट्रोल्ड हो रहा है. ओके, अभी इस स्लाइड से पहले तक हम लोगों ने जितनी भी बात की थी उसमें हमने बात किया था कि होमोलोगस क्रोमोजोम है और इस होमोलोगस क्रोमोजोम के
एक ट्रेट के दो अलील्स हैं, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड अलील्स. These traits are, for example, height. Okay, these are small t and big t, or it may be big t, or it may be small t. इस तीन टाइप का ये एक ही जीन का दो फॉर्म्स हो सकता है. एंड दे वेयर शोइंग देयर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. अभी तक हम लोग और जो डेविएशन हुआ इस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में. लेकिन यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में डिफरेंस ये है, इसको ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे अब इन्वॉल्वमेंट ही हो गया मोर देन 2 जीन्स का. मतलब क्रोमोजोम पे 2 डिफरेंट जीन्स हैं और ऑफ कोर्स इसके अपने अपने अलील्स होंगे. ओके, जैसे ये जीन ए है और कोई फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ये दे रहा है, तो इसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पे ये जीन भी अपना असर डाल रहा है. ओके, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट अलील्स ऑफ कोर्स दो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंट जीन की बात कर रहे हैं. ओके, तो दिस इज द डिफरेंस between the polygenic inheritance and all the topics which we have read behind. Here we are talking about different genes that are may be present on the same chromosome, or it may be present on the different chromosomes also. Okay, and of course these genes will have their own allelic forms on their homologous chromosome. Then this type of single trait is controlled by multiple independent genes, not alleles, multiple independent genes, and of course these genes have their alleles. तो देखो कैसे जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं. सबसे पहले 2 अलील्स हुए, फिर 2 अलील्स में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हुआ. उसके बाद हमने नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पढ़ा कि नो, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव नहीं भी हो सकता है, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ सकता है. देन हमने कोडोमिनेंस में पढ़ा नो, दोनों हाइब्रिड कंडीशन में दोनों रिसेसिव एंड डोमिनेंट जो है इक्वली डोमिनेंट हो सकते हैं प्रोजेनी में, एंड दैट विल फॉर्म कोडोमिनेंस. दोनों इक्वली आएंगे लाइक पैचेज ऑफ द कलर. उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीपल एलील्स. इट मीन्स नो, देयर इज नॉट ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ जीन्स, सिंगल जीन्स, देयर मे बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ और मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ जीन्स लाइक ब्लड ग्रुप, जहाँ पे 3 फॉर्म्स ऑफ एलील्स हैं सिंगल जीन के. ओके, एंड देन वी स्टडी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रेट ही जो है वो मोर देन 1 जीन से गाइडेड है. ये आई कलर है तो इट डजेंट गाइडेड बाय अ सिंगल जीन ई, बट इट मे बी गाइडेड बाय अ डिफरेंट जीन दैट इज कॉल्ड टी. और ऑफ कोर्स इसका भी अलील होगा स्मॉल ई और इसका भी अलील होगा स्मॉल टी, और मे बी इट मे बी प्रेजेंट इन दिस वे और इट मे बी प्रेजेंट इन दिस वे ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम्स. सो यहाँ पे डिफरेंट जीन्स की बात हो रही है. दिस पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड. Polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. यहाँ पे ध्यान देंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होता है. आप देख सकते हैं हाइट ऑफ कोर्स मे डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशन क्वांटिटी ऑल्सो, the fooding also, the environment in which the child is growing, eye color also, skin color, hair color, these may be sometimes or may be influenced by the environment also कि उसका कैसा phenotypic expression होगा. आप वेट में भी देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने लगे तो मे बी पेरेंट्स थिन हो, द चाइल्ड मे बिकम हेल्दी और ओबीज. तो इस टाइप के ट्रेट्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी अफेक्टेड होते हैं. नाउ वी विल स्टडी इन डीप the skin color, human skin color, because it is given in your NCERT book this example.
In the polygenic inheritance, we will study human skin color. Now we came to know that human skin color is controlled by 3 different genes, that is A, B and C. Please see here that it is 3 different genes. मीन्स अगर ये क्रोमोजोम होगा होमोलोगस क्रोमोजोम तो यहाँ पे A, फिर यहाँ पे B और यहाँ पे C होगा और ऑफ कोर्स इसका अलीलिक फॉर्म भी होंगे. ओके तो एक इंडिविजुअल में इनका सेम होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकता है लाइक A, B, B, C. ओके हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकता है लाइक A, B and C. एंड हाइब्रिड कंडीशन भी एंड रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकता है इन द होमोलोगस क्रोमोजोम. सो वी सी दैट human skin color is determined by 3 different types of gene, that is A, B, C, and with its contrast allelic pair A, B, C. Okay, these A, B and C codes the melanin. Our skin color is determined by the chemical melanin. जितना ज़्यादा मेलानिम होगा उतना ही ज़्यादा डार्कनेस ऑफ स्किन होगा और जितना कम मेलानिम होगा द स्किन विल बी लाइटर. द मोर मेलानिम इन द बॉडी द डार्कर विल बी द स्किन. द लेस मेलानिम इन द बॉडी द फेयरर will be the skin, because this chemical is being synthesized by the cooperation of 3 different genes in the dominant form, that is A, B and C. It is responsible for the dark skin color while A, B and C is responsible for the light skin color. The phenotype skin color is contribution of each allele. The effect of each allele is additive. इस पॉइंट को समझेंगे why it is called as additive, because अगर किसी इंडिविजुअल में जितने भी इस तीनों जीन्स के जितने ज़्यादा परसेंटेज डोमिनेंट के रहेंगे उतना ही ज़्यादा वो स्किन डार्कर होगा और जितना ही ज़्यादा परसेंटेज रिसेसिव जीन्स के रहेंगे उतना ही फेयरर वो स्किन होगा. तो एडिटिव मीन्स ये तीनों जीन्स जो हैं वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने में उसके एक्सप्रेशन में अपने कंट्रीब्यूशन से ऐड कर रहे हैं. मीन्स ज़्यादा डोमिनेंट जीन्स ज़्यादा डार्कर द मोर डार्कर द स्किन, कम डोमिनेंट लेस डोमिनेंट जीन्स द लेस डार्कर द स्किन. मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल है जिसमें A प्रेजेंट है, A इज़ प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म एंड देन ऑल जीन्स आर रिसेसिव, देन it will be a fairer skin in comparison to a man who is possessing A, B, B एंड C. यहाँ पे देखो डोमिनेंट जीन्स की संख्या ज़्यादा है, 50% जीन्स जो हैं वो डोमिनेंट है एंड 50% रिसेसिव है. तो ये इंटरमीडिएट कलर होगा और इसमें देखो जो डोमिनेंट जीन की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई. इस 1 2 3 4 आउट ऑफ 6 ओनली 1 इज़ डोमिनेंट. तो ये जो इंडिविजुअल होगा वो फेयरर इन कलर होगा क्योंकि ये सब रिसेसिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव. मीन्स जितना ज़्यादा डोमिनेंट या रिसेसिव के फॉर्म में रहेंगे अपने इफ़ेक्ट को ऐड करेंगे वो एक्सप्रेशन में. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस. The darkest skin will be of A, B, B, C type. Of course, the individual who will possesses all the genes in dominant forms, he will be the darkest in color. The type of the lightest will be A, B, B and C. और जो सबसे lightest है albino color कह सकते हैं, that individual will consist of all the genes in recessive forms, with its homozygous recessive alleles. Okay,
Now we see that if an individual is possessing is darkest and it is crossed with a male or female who is lightest, मीन्स इसका देखो क्रोमोजोम पे कैसा अरेंजमेंट है कि इसका होमोलोगस क्रोमोजोम ऐसा है, यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ ए है, बी है, सी है. इसका कैसा है, ए बी सी और ए बी सी. See, I am taking example here that all these three genes are present on the same chromosome. ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है. If that type of individual is crossed और क्रॉसिंग के बाद we know that we get F1 जनरेशन, हाइब्रिड F1 जनरेशन, तीनों जीन्स के हाइब्रिड F1 जनरेशन आएंगे जो कि इस दोनों के बीच का कलर होगा, क्योंकि यहाँ 50% डोमिनेंट जीन्स हैं एंड 50% रिसेसिव जीन्स हैं. तो 50-50% आपका मिलकर दोनों कलर एक इंटरमीडिएट सांवला कलर आएगा. अब इट मे बी पॉसिबल दैट अगर ये दोनों क्रॉसिंग कर रहे हैं और इनके 4 बच्चे हुए तो एक बच्चा में ऐसा गया, दूसरे बच्चे में ऐसा हो सकता है कि डोमिनेंट का इसमें 50% कंसंट्रेशन है, उसमें 20% कंसंट्रेशन हो और रिसेसिव जीन्स का 80% हो, तो वो ऑफस्प्रिंग जो होगा वो लाइटर इन कलर एंड फेयरर देन दिस, वो इस साइड होगा. ओके. अब ये ऐसा भी हो सकता है कि डोमिनेंट ज़्यादा आ जाए और रिसेसिव कम आए तो वो और डार्कर हो जाएगा, क्योंकि गैमेट जब बनेंगे तो प्रोबेबिलिटी गैमेट के बनने में ये तीनों जो हैं इंडिपेंडेंट जाएंगे और जब जाइगोट में जाएंगे तो मे बी द कंसंट्रेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव विल वेरी. एंड इन दिस वे the darkest and fairest, the lightest parents may have different forms of offspring of different color because the skin color is guided by polygenic inheritance. As the number of dominant alleles will increase, the darkness trait will increase, and as the number of recessive alleles will increase, the lightness color of the skin will इंक्रीज़. जैसे जैसे डोमिनेंट जीन जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे तो डार्कनेस इंक्रीज़ करेगा, और अगर लाइट वाला जीन रिसेसिव जीन का कंसंट्रेशन उस ऑफस्प्रिंग में इंक्रीज़ होगा तो रिसेसिव जो फेयर है वो कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा. यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन को भी ध्यान देना होगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स हैं. So we have to go deep inside these, but till 12th we have to study these points only. Okay. Now here is all about your polygenic inheritance, जिसमें हमने पढ़ा कि एक सिंगल ट्रेट जो है वो मल्टीपल जीन्स से गाइड हो सकते हैं. ध्यान देना, इससे पहले हम लोग मल्टीपल अलील पढ़े थे ब्लड ग्रुप में, वहाँ एक ही जीन का 3 डिफरेंट अलील था, लेकिन यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक जीन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ 3 डिफरेंट जीन्स ही हो गए ऑफ देयर ओन अलीलिक कंस्टिट्यूशन, और उनके अपने अपने अलीलिक कंस्टिट्यूशन भी हैं पेयर में. So here we conclude the polygenic inheritance, your one topic. The example is skin color, hair color, eye color, weight, height. These all are polygenic inheritance. ये क्वेश्चन मानो मन में आता है कि क्यों पेरेंट्स, मम्मी बहुत छोटी है, पापा बहुत लंबे हैं, फिर भी जो बच्चे हैं वो डिफरेंट हाइट के हैं, बहुत छोटे और बहुत लंबे नहीं हुए, बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेट्स में आए. तो दिस इज़ द आंसर बिहाइंड दैट क्वेश्चन. Now come to the next topic, that is pleiotropic genes. वहाँ पे polygenic inheritance है, previous one, and this is the pleiotropic genes. Here it is the just opposite condition. There are many instances in the genetic study of population that a single gene exhibit multiple phenotypic expression. इसके पहले हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ा कि
एक ट्रेट को बनाने में डिफरेंट जीन्स काम आ रहे हैं, डेट इज़ ए बी सी, और ये तीनों जो हैं एक ही ट्रेट स्किन कलर को गाइड कर रहे हैं, ओके। लेकिन प्लियोट्रॉपिक जीन्स में हम एक ही जीन की बात करेंगे लाइक ए, और ये बहुत सारे ट्रेट्स को गाइड करेगा। जैसे ये मानो किसी एक कैरेक्टर को गाइड कर रहा है, दूसरे को भी करेगा, तीसरे को भी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग डे टू डे लाइफ में देखें कि अगर किसी एक जीन के प्रॉब्लम के कारण हमें कोई प्रॉब्लम डिजीज़ होता है, तो सिर्फ हमें वही एक डिजीज़ होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को मल्टीपल माल फंक्शनिंग से गुजरना पड़ता है। मीन्स हम लोग मल्टीपल डिजीज़ या मल्टीपल सिम्टम्स से गुजरने लगते हैं। लाइक अगर आपके पास डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम का जो जीन या क्रोमोसोम नहीं है, तो केवल एक ही इफ़ेक्ट नहीं आता है, वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी हो जाता है, ग्रोथ भी कम हो जाता है, आई प्रोट्रूडेड हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि दैट जीन और दैट क्रोमोसोम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी कैरेक्टर्स। उसी तरह हम लोग जैसे सिकल सेल अनीमिया देखेंगे, जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ है। ये सिकल सेल अनीमिया एक जीन के म्यूटेशन के कारण होता है, पॉइंट म्यूटेशन। एक जीन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, बाय मिस्टेक उसका प्लेस वो नहीं मतलब वो डिफरेंट हो जाता है, और दैट वन सिंगल जीन म्यूटेशन काउजेज सिकल सेल अनीमिया। But when a individual suffers from sickle cell anemia, then he suffers from many other symptoms also. It shows that जो वो जीन म्यूटेट हुआ, वो जीन इतने सारे फिनोटिपिक ट्रेट को गाइड कर रहा था। So that type of genes are called as प्लियोट्रॉपिक जीन्स। उस टाइप के जीन्स को हम लोग कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन्स, जो कि अगेन मेंडल से अलग है। मेंडल का कहना था अगर ये टी जीन है तो ये केवल टॉलनेस को गाइड करेगा और बाकी किसी कैरेक्टर में इसका कोई रोल नहीं है। बट प्लियोट्रॉपिक जीन्स का मतलब है कि अगर ये टी जीन है तो यहाँ पे ये टॉलनेस को तो गाइड करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ ये भी बहुत सारे ट्रेट पे भी थोड़ा थोड़ा या बराबर का इफ़ेक्ट डालेगा, जैसे टॉलनेस, देन वेट, देन मे बी मेंटल कंडीशन, मे बी द ह्यूमन डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी। इतने सारे ट्रेट्स को एक सिंगल जीन भी गाइड कर सकता है। दैट टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन्स। Maybe not all genes present in our body or chromosome is pleiotropic, but many genes show pleiotropic phenomena. Means many genes show their expression in different phenotypes. Okay, see how the genetics is becoming complicated. Genetics is not so easy. When we study on population, then the genetics become and the genetic constitution becomes more complicated in more advanced organisms. It is not just like and so simple like Mendel has imagined. मेंडल साहब ने जैसा इमेजिन सिंपल सा किया था वैसा केवल जेनेटिक्स अब नहीं है। नाउ हाउ दिस हैपन्स, प्लियोट्रॉपिक जीन्स का जो फंक्शन है वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसका केमिकल बेसिस हम समझते हैं। अगर एक जीन हम जानते हैं, वी नो डैट हाउ जीन्स फंक्शन। इफ़ इट इज़ अ जीन देन इट फंक्शंस बाय क्रिएटिंग एंजाइम बनाकर, केमिकल्स बनाकर अपना काम करता है जीन एक। अब ये केमिकल जो एंजाइम बना वो क्या करता है, हम लोग क्लास 12 में पढ़े हैं, ये एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलता है और प्रोडक्ट क्रिएट करता है। दिस इज़ द केमिकल फंक्शन बिहाइंड अ जीन एक्टिविटी। एक जीन के एक्टिविटी के पीछे यही केमिकल फिनोमिना है कि एक जीन कैसे केमिकली फंक्शन करता है। इट क्रिएट्स और इट परफॉर्म्स और इट सिंथेसाइजेज एंजाइम्स। ये केमिकल्स बनाता है लाइक एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट हमारे डिफरेंट फिजियोलॉजी को शो करता है दिस प्रोडक्ट। सो अब ये
हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये किसी और चीज़ बाय प्रोडक्ट, किसी और केमिकल रिएक्शंस का बाय प्रोडक्ट हो और वहाँ यूज हो, किसी और केमिकल एक्शन का ये सबस्ट्रेट बन जाए और ये दूसरे इंजाइम्स के लिए सबस्ट्रेट हो जाए और दूसरा इंजाइम जो है इसको यूज कर दे एज सबस्ट्रेट। तो जब ये दूसरा इंजाइम इसको यूज करेगा सबस्ट्रेट के लिए, तो इस इंजाइम का फंक्शन जो है वो इस इंजाइम पे डिपेंड है और ये इंजाइम एक दूसरे जीन पे है और सब मिलाकर एक ही ट्रेट कर रहे हैं। मीन्स कि ये इनडायरेक्टली ये जीन इस ट्रेट के लिए, ये जीन एक सिंगल जीन जो है और ये इस प्रोडक्ट को बना के एक दूसरा ट्रेट बना रहा है, ओके। और डायरेक्टली ये प्रोडक्ट ये ट्रेट बना रहा है और जब ये प्रोडक्ट इस इंजाइम का सबस्ट्रेट हो जा रहा है तो दूसरा ट्रेट बन रहा है, ओके। तो ये दो ट्रेट्स बन रहे हैं, बट इस ट्रेट में ये इंजाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व है ये इस जीन से, लेकिन ये जीन भी तो इन्वॉल्व हो गया क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना वो किसका था, ये इस जीन का था और ये प्रोडक्ट अब इस इंजाइम के लिए सबस्ट्रेट बन गया। तो इफ़ दिस जीन विल बी डिस्टर्ब देन दिस ट्रेट विल ऑल्सो बी डिस्टर्ब। ये ट्रेट तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस जीन से, तो ये डिस्टर्ब होगा ही, लेकिन ये ट्रेट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो व्हेन वी सी द केमिकल behavior behind a genetic activity, behind a gene activity, we see that a product of a one gene become the substrate of the another genes. So when the product of one gene is disturbed, then the function of other genes will also disturb and the other traits will be also affected, और जो दूसरे ट्रेट हैं वो भी इफ़ेक्टेड होंगे क्योंकि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे रिएक्शन सेपरेट नहीं हो रहे हैं। एक रिएक्शन का सबस्ट्रेट दूसरे का प्रोडक्ट है, दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है, तीसरे रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट किसी दूसरे इंजाइम का सबस्ट्रेट है। तो ये जितने एक्टिविटीज़ हैं जीन्स के वो को रिलेटेड हैं और इस तरह हम लोग केमिकल बिहेवियर से ये प्रूव करते हैं कि यस अ सिंगल जीन कैन इफेक्ट मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स एंड दीज जीन्स आर कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स। इन्हीं को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स, ओके। देन द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन्स आर starch synthesis in seeds, sickle cell anemia and phenylketonuria. These all are genetic, these two are genetic disease. ये एक जीन के म्यूटेशन से होता है, सिंगल जीन। तो सिंगल जीन के म्यूटेशन से लाइक सिकल सेल अनीमिया में आरबीसी सिकल सेल्ड हो जाता है। मीन्स जो प्रोडक्ट आरबीसी को बाय कनकेव शेप देना था वो डिस्टर्ब हो गया और वो म्यूटेट हो गया और वो सिकल शेप्ड आरबीसी बनाया। तो इस जीन का केवल फंक्शन यही था, लेकिन यहाँ पे एक इंडिविजुअल अगर सिकल सेल अनीमिया से सफ़र कर रहा है तो उसमें ये सिकल सेल्ड आरबीसी तो होंगे ही, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे उसमें सिम्टम्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लाइक वो वीक होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, अनीमिक हो सकता है। तो दीज ऑल ट्रेट्स आर गाइडेड बाय दीज जीन्स and in this way this single gene is controlling many other phenotypic characters also. Sickle cell anemia and phenylketonuria are human genetic disease and starch synthesis in seeds are found in pea seeds. The RBC becomes sickle cell due to sickle genetic mutation, but the humans suffer from a number of problems in this, all of which are pleiotropic effect of sickle cell allele. जब when an individual suffer from this disease, he suffers from many other problems also. Why? Because they show the gene which affect the sickle cell anemia shows pleiotropic character, is a pleiotropic genes, and if it affects many traits also. In the same way, phenylketonuria
इन फिनाइलकीटोन्यूरिया जो जीन का म्यूटेशन होता है, चेंज हो जाता है, उसमें एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज नहीं बन पाता है। ओके, ये आप एंजाइम को याद करेंगे, एग्जाम में आता है ड्यू टू विच एब्सेंस ऑफ ड्यू टू विच एंजाइम, क्योंकि बॉडी में ये एंजाइम नहीं बन पाता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण, तो ये आपको फिनाइलकीटोन्यूरिया यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सफ़र होता है। ओके, बट दिस a person who has having this disease suffers from reduction in hair, skin pigmentation, mental retardation also. It means that single gene was also affecting the growth of these type of characters. So here we are seeing the examples of pleiotropic genes. Our character, most of the genes are pleiotropic in nature. Means अगर एक जीन म्यूटेट हो रहा है तो केवल एक ही हमारा कैरेक्टर ट्रेट जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा, डिफरेंट ट्रेट्स अफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल जीन जो है बहुत सारे इफ़ेक्ट को, बहुत सारे ट्रेट को इफ़ेक्ट कर रहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इन योर बुक द स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स दिया हुआ है, जो कि आपको प्लियोट्रॉपिक जीन्स के अंदर ही पढ़ना है। उसमें आपका इसमें कोडोमिनेंस में दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, दैट a single starch synthesis is guided by single gene B and its allelic pair B. Okay, if a seed has BB then it synthesizes effective starch grains, बड़े बड़े starch grain वो अपने seed में बनाता है, और अगर रिसेसिव है तो छोटे छोटे starch grains अपने seed में बनाता है। और लेकिन हम देखते हैं कि आफ्टर मैचुरेशन ये जो बड़े वाले स्टार्च ग्रेन्स हैं वो राउंड हो जाते हैं और छोटे वाले रिंकल्ड हो जाते हैं। इट मीन्स ये जो सिंगल जीन बी है वो स्टार्च ग्रेन के साइज को भी इफ़ेक्ट कर रहा है और सीड के शेप को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हुआ ना, एक जीन दो ट्रेट को इफ़ेक्ट कर रहा है, इट इज़ प्लियोट्रॉपिक जीन। यहाँ पे हम देखेंगे बुक में आपका कोडोमिनेंस के में दिया हुआ है, जिसमें बी जो है वो इंटरमीडिएट सीड्स बना रहा है। मीन्स यहाँ पे या तो मेंडल के अनुसार बी कैसा होना चाहिए था, लार्ज साइज सीड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज सीड हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल बुक ने कोडोमिनेंस के बाद भी दिया है, और इसका एग्जाम्पल हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन्स में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें ये सिंगल जीन जो है दो कैरेक्टर को गाइड कर रहा है, दैट इज स्टार्च का अमाउंट और सीड का शेप। हेयर अ सिंगल जीन इज अफेक्टिंग टू ट्रेट्स। Note, BB is also showing incomplete dominance in the case of starch size of Cs. यहाँ पे हम लोग देखेंगे not codominance, it is showing intermediate character and showing of intermediate characters is incomplete dominance. जैसे red flower and white मिलके पिंक बन रहा था, उसी तरह यहाँ पे बड़े स्टार्च ग्रेन और छोटे स्टार्च ग्रेन इन हाइब्रिड कंडीशन में इंटरमीडिएट बन रहे हैं। तो जब भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो होता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में इट इज़ गिवन आफ्टर कोडोमिनेंस मल्टीपल एलील्स, उसके बाद दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम्पल है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एंड ऑल्सो प्लियोट्रॉपिक जीन्स का। इसको आप दोनों केस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ it's a very important difference और very important question for your exam। बहुत ही important है, आप दोनों में difference समझें। हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, इसमें पढ़ा एक ट्रेट जो है वो मेनी जीन्स से गाइड हो रहा है, लाइक स्किन कलर, हेयर कलर, वेट। एक सिंगल ट्रेट मेनी जीन्स से गाइडेड हो रहे हैं, लेकिन प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या है, एक सिंगल जीन मेनी ट्रेट्स को गाइड कर रहा है। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो ये पूरा टॉपिक आप समझ गए। दोनों जस्ट अपोजिट इन नेचर हैं। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वी स्टडी दैट अ सिंगल ट्रेट इज गाइडेड बाय मेनी जीन्स,
and in pleiotropy we study that a single gene controlled many traits. ओके, लाइक सिकल सेल अनीमिया का जो जीन है वो मेंटल रिटार्डनेस को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. तो एक सिंगल जीन जब बहुत सारे ट्रेट को कंट्रोल करेगा तो प्लियोट्रॉपिक जीन्स हो गए वो. और जब एक सिंगल ट्रेट बहुत सारे जीन्स से गाइडेड हो जाएगा तो वो कैसा इनहेरिटेंस हो जाएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. दिस इज़ अ कंपैरिजन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो एंड फॉर योर एग्जाम ऑल्सो. Now we are able to understand and answer these questions. Write these questions with answer in your copy. Substantiate your answer that skin color is a polygenic inheritance. Substantiate means to prove your answer with perfect explanation. That is called substantiate. It is given in the slide. You can easily answer. Give 3 examples of polygenic inheritance. It is also given in the slide. You can give skin color, eye color, weight, height. Why do we call polygenic inheritance as non-Mendelian inheritance? Yes, because here a single trait is guided by many genes, but according to the Mendel, a single trait is guided by one gene only. Now next question, why phenylketonuria disease can cause the death of an organism? This can be explained under which genetic phenomena? It can be explained under pleiotropic genes, because when this disease is caused, the organism suffer from many other disease also, and which may cause the death of the organism. Given comparison between the pleiotropic and polygenic inheritance, a beautiful sketch diagram I have given behind, that is this. You can draw it in copy. In answer also it is very important, and it is my style answering, giving in arrow or diagrammatic form the difference. So here we complete 2 important genetic phenomenon that is complicated also, and it also follows the non-Mendelian inheritance, means it doesn't follow the law of Mendelism. Okay, do this and listen this audio part wise. If it is lengthy, then part wise, and listening the audio. While listening the audio, keep the book in front of you and read the para and listen the audio, because the topic is little bit complicated, and you have to differentiate between these topic also, these 2 topic. So understand it nicely, listen the audio again and again. In the next slide we will study the डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल. हमने जितना भी वेरिएशंस था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया. उसके बाद हम लोग मेंडल का ही डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो रीड द बुक, लिसन द ऑडियो नाइसली, and prepare the notes. Okay, thank you.